Hello students, myself Professor Abhay Kumar Sharma. I welcome you all in your new class PG Diploma in Applied Agriculture. So I will teach you mushroom cultivation in this first semester. So this is your book. Before starting the today's topic, I'll want to discuss something about book. This is a recommended book for as per your syllabus, mushroom cultivation by DP Tripathi, and this is the publication of CBS Publisher and Distributor Private Limited, and this book is of Oxford and IBPH Publishing Co Private Limited, New Delhi. If you want to purchase, you can take or you can purchase this book from market, or even you can order it online. So let's start with the first topic of your syllabus of first unit, that is Introduction and History of Mushroom Cultivation. So before starting the history, I would like to discuss the definition. What is mushroom? So the term mushroom is employed to designate edible, fleshy and macroscopic Basidiocarpus or Ascocarpus spore bearing fungi of certain species, whereas toadstool signifies poisonous or inedible species of such fungi. तो बेटा मशरूम जो टर्म है, हम मशरूम किसको बोलते हैं? बेसिकली जो हमारी एडिबल फंगी होती है, जो खाने वाली फंगी होती है, फ्लैशी होती है, और मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मीन्स बड़ी, माइक्रो मीन छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ी, और बेटा बेसिडियोकार्पस और एस्कोकार्पस मीन्स दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ fungus, and these bodies containing spores these macroscopic Basidiocarpus or Ascocarpus spore bearing fungi of certain species. Not all species of fungal are edible, only certain species, कुछ species होते हैं जो क्या होते हैं, खाने लायक होते हैं, edible होते हैं. So whereas some toadstool signifies poisonous, कुछ बेटा हमारे जो फंगस के स्पीशीज़ होते हैं दैट आर पॉइजनस, जहरीले होते हैं, इनएडिबल, खाने के लायक नहीं होते. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिकली मशरूम इज़ अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मशरूम क्या है? अ फ्लैशी एंड स्पोर बियरिंग न्यूट्रिटिव ऑर्गन. बेटा एक फ्लैशी है और फंगस का एक फ्लैशी पार्ट है, और उसके बीच में, ठीक है, चाहे वो बेसिडोकार्पस है चाहे एस्कोकार्पस है. ये बेसिडोकार्पस के केस में हमारे पास कप शेप्ड, और उसके एस्कोकार्पस के बीच में हमारे बाउल शेप फ्रूटिंग बॉडी की शेप होती है, और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं. तो ऑफ सर्टेन फंगस दैट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ organisms which differ in many respects from flowering plants and animals. बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे जस्ट एज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सो आउट ऑफ द 5 द फंगस इज़ ऑन द 3rd नंबर. It is different from both animal kingdom and plant kingdom because its characteristics are totally or almost different as of animal and plants. Fungi may be differentiated from higher plants as under. There is a difference between fungus and higher plants. That's why fungus is having their own kingdom and plants are in another kingdoms. Like fungi lack chlorophyll, root, stem, leaves and flowers. फंगस के बीच में बेटा क्लोरोफिल नहीं होती, ना ही रूट्स होती हैं, ना ही स्टेम होती हैं, ना ही लीव्स और ना ही फ्लावर्स. बट यू नो इट वेरी वेल, प्लांट्स आर ऑलवेज हैविंग chlorophyll that is responsible for photosynthesis process.
Even roots, stems, and leaves and flowers, all these are present in higher plants. Second, they fungus have no true seeds. There is no true seed in the case of fungus. And you know कि seeds are produced by the after the fertilization takes place in a flowering plant, and true seeds having a different part like embryo, endosperms. But in the case of fungus, that there are no true seeds and are usually propagated by spores. Spores are there, act as a propagating part of a fungus, from where a new fungus or new mycelium is generated. In higher plants, they have a true seeds and are propagated by seeds and vegetative means, but not by spores. जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके बीच में जो हमारी ट्रू सीड्स प्रेजेंट होते हैं, सीड्स एक्ट करते हैं एज अ प्रोपेगेटिंग बॉडी, और कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स एक्ट करते हैं, बट स्पोर्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते. फंगस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. बेटा फंगी अपना खाना खुद नहीं बनाती, बट जो हायर प्लांट्स हैं दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर देम. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. फंगी में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. मोटाइल्स मीन्स बेटा मूवेबल. फंगस may be motile or non-motile, but higher plants are always non-motile. You know it very well. Higher plants are having a fixed place or a fixed position. They never move from one place to another. And this is all about the definition of mushroom and difference between fungus and higher plants. Why fungi is different from higher plants. These are the some basic points which explained why fungus is different from plants and animals. Now let's start with the history of mushroom cultivation, how mushroom cultivation originated, how it came into practice. As early in 1630, बेटा अगर हम बात करें 1630 की, the cultivation of white button mushroom, that is Agaricus species. तो white button mushroom के species कौन सी है? बेसिकली हमारे Agaricus. was started for the first time in France. सबसे पहले जो बेटा वाइट मशरूम की कल्टीवेशन 1630 में कहाँ शुरू हुई थी? फ्रांस में. The cultivation was done in the open on ridges made out of हॉर्स डंग मैन्योर. और बेटा जो कल्टीवेशन थी वो सबसे पहले किसके ऊपर की गई थी? जो हमारे तब कंपोस्ट की जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था नहीं था, तब किसके ऊपर की गई थी? हॉर्स डंग को एज अ मैन्योर यूज़ किया गया था, एज अ कंपोस्ट, जिसके विद द हेल्प ऑफ दैट फर्स्ट टाइम मशरूम कल्टीवेशन वाज डन इन 1630. After that, in 1707, method of compost preparation was reported. बेटा सबसे पहले जो हमारा कंपोस्ट प्रिपरेशन का जो कॉन्सेप्ट था, मेथड था, वो कब हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ? 1707 में. एंड डिस्क्राइब्ड बाय रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस फ्रांस. बेटा और इसको किसने बेटा सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कंपोस्ट प्रिपरेशन को? रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस फ्रांस ने. ग्रेजुअली फ्रेंच मेथड ऑफ मशरूम कल्टीवेशन was introduced in England by Miller in 1731. बेटा जो हमारा फ्रांस की रॉयल अकेडमी में कंपोस्ट प्रिपरेशन का मेथड था और जो मशरूम कल्टीवेशन फ्रांस में हुई थी हमारे पास with the help of horse dung manure. So all these methods were further इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड. इसको किस में इंट्रोड्यूस किया गया? फ्रांस से इंग्लैंड में 1731 में. किसने किया था? मिलर ने. आफ्टर 37 in 1810 a French gardener named as Chambray started growing mushroom in underground quarries at Paris.
तो बेटा 1810 में एक हमारे पास फ्रेंच गार्डनर था, उसने मशरूम कल्टीवेशन को शुरू किया। कहाँ पे किया? अंडरग्राउंड क्वेरीज में, पेरिस में, सबसे पहले फ्रांस में, फिर इंग्लैंड में, आफ्टर दैट इंग्लैंड, फ्रेंच गार्डनर डू इट इन एट पेरिस। द कैलो 1831 grew mushroom in cropping houses and warmed it by fire heat। और बेटा 1831 में किसने? कैलो ने बेटा क्रॉप की थी, मशरूम ग्रो की थी क्रॉपिंग हाउसेस में, और उसने जो वार्म कंडीशन थी वो कैसे दी? फायर हीट से, आग लगा के। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, उसका क्या नतीजा हुआ? द यील्ड वॉज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, जो मशरूम प्रोडक्शन की यील्ड थी, पैदावार बढ़ गई बहुत अच्छे तरीके से। मच इंफॉर्मेशन अबाउट स्पोर जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग ऑफ माइसीलियम वॉज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ फर्ग्यूसन इन 1902 फ्रॉम USA। बेटा और जो इसके स्पोर जर्मिनेशन की हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई, हाउ स्पोर्स गेट जर्मिनेटेड और हाउ mycelium is growing, so details about these spore germination and growing of mycelium was first time reported from USA in 1902. After that, in 1905, Duggar cultured mycelium from tissue of mushroom to be used as a propagating material for mushroom crop production। बेटा उसके बाद 1905 में एज़ पर टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक ड्यूगर ने क्या किया था? कल्चर किया था माइसीलियम को। कहाँ से लिया था उसने? मशरूम के टिश्यू से, ठीक है। उसने क्रॉप प्रोडक्शन की। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ हमारे पास? इट रिजल्टेड इन सेटिंग अप अ लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन अमेरिका। वहाँ से बेटा टिश्यू कल्चरिंग से हमारे पास क्या, कौन सी एक नई प्रोसेस तैयार हो गई, नई हमारे पास वो कौन सी, नया नतीजा क्या निकला हमारे पास? स्पॉन प्रोड्यूसिंग कंपनीज बहुत सारी इस्टेब्लिश हो गई अमेरिका में। फिर उसके बाद 1915 में मशरूम ग्रोअर ऑफ USA प्रैक्टाइज्ड कंप्लीट थर्मोजेनेसिस इन शेल्फ कंपोज्ड बेड विद इन अ ग्रोइंग हाउस बिफोर स्पॉनिंग। तो बेटा 1915 में फिर क्या क्या था? USA के मशरूम ग्रोअर ने शेल्फिंग, बेटा जैसे हमारी किचन की शेल्फ होती है ऐसे ही, दे मेड शेल्फ ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड दे यूज दैट शेल्फ फॉर द एज अ कंपोस्ट बेड। दे जस्ट स्प्रेड द कंपोस्ट ओवर दी शेल्फ्स एंड these composed with beds were used and for the mushroom cultivation. After that, in 1917, the flag described the cultivation of Pleurotus auratus on tree stumps and logs। बेटा उसके बाद हमारे पास कंपोस्ट फॉर्मेशन का कंसेप्ट भी आ गया। फिर हमारे पास मशरूम की टिश्यू कल्चरिंग भी हो गई। फिर 1915 में हमारे पास कंपोस्ट बेड्स की फॉर्मेशन का मेथड भी आ गया। अब इसके बाद बेटा 1970 में किसका काम शुरू हुआ? डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स स्पीशीज़ का। तो सबसे पहले फ्लैक ने क्या डिस्क्राइब किया था? कौन सी मशरूम की कल्टीवेशन? प्लूरोटस ऑरिटस ऑन स्टेम ऑन ट्री स्टम्स एंड लॉग्स। उसने किस पे किया था? जो हमारी ट्री की स्टम्स और लॉग्स होती थी उनको यूज़ करके एज अ सबस्ट्रेटम उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन की थी। कौन सी मशरूम की? प्लूरोटस ऑरिटस की। आफ्टर सम टाइम लैम्बर्ट इन 1929 डिस्कवर्ड दैट प्रोडक्टिव स्पॉन कुड आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पोर कल्चर। तो जो हमारी स्पॉन है उसको हम कहाँ से भी तैयार कर सकते हैं? एक सिंगल स्पोर कल्चर से भी। आफ्टर फ्यू ईयर्स सिंडन इन 1937 ऑब्जर्व दैट about 1/3 of monospore culture of Agaricus biparus were incapable of producing fruiting body। बट बेटा जब 1937 में लैम्बर्ट के मेथड को अप्लाई किया तो उसके बीच में हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया कि जो एग्रिकस बाइस्पोरस थे वो इनकैपेबल हुए, वो नई फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर सके। फिर लैम्बर्ट ने 1941 में क्या किया कि ऑब्जर्व द टेम्परेचर बिटवीन 15 and 60 डिग्री सेल्सियस इज सुटेबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ
गुड क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट। फिर बेटा उसने कंक्लूड किया कि टेम्परेचर इज़ ऑल्सो अ बिग पैरामीटर which is suitable for the preparation. That temperature is 50 to 60 is the suitable temperature for the preparation of good quantity of compost. During the period between 1950 and 1953, Siddon and Hauser contributed short method of compost preparation. बेटा उसके बाद एक शॉर्ट मेथड तैयार किया गया कंपोस्ट प्रिपरेशन का। फिर इन 1962 बानो एंड श्रीवास्तवा रिपोर्टेड मास प्रोडक्शन ऑफ मशरूम ऑन स्ट्रॉ बेस सबस्ट्रेट। बेटा फिर अब 1962 में जो बानो और श्रीवास्तवा थे उन्होंने बेटा मास प्रोडक्शन शुरू की मशरूम की, और उन्होंने क्या इस सबस्ट्रेटम क्या लिया, हमारे पास सबस्ट्रेट क्या लिया, स्ट्रॉ मतलब पराली। They reported increased yield of Puritas species on paddy straw used as a substrate, और as a result they came to a conclusion that कि अगर हम paddy straw यूज़ करते हैं तो Puritas species की जो yield है वो बहुत ज़्यादा increase करती है। So this is all about the history of mushroom. This is your first lecture. Read it carefully. If anybody having any doubt, you can call me or WhatsApp me, or otherwise you can take this book from the market or you can purchase it. I recommend this book, Mushroom Cultivation by D.P. Tripathi.